आरंभवाद न्यायमत का सिद्धांत है। आरंभवाद के अनुसार अनेक कारण रूप इकट्ठे होकर एक कार्य की शुरुआत होती है। इसमें एग्जाम्पल दिया है खीर का। इसमें अनेक कारण जैसे कि चोखा, दूध, शक्कर मिलके खीर नाम कार्य की उत्पत्ति होती है, आरंभ होती है। आरंभ मत के अनुसार कारण से कार्य उत्पन्न होता है और कार्य जगत को सत्य भी माना जाता है इसमें। फिर परिणाम, परिणामवाद और आरंभवाद में इतना डिफरेंस है कि आरंभवाद के अनुसार कार्य एक नूतन आरंभ है और कारण उससे अलग है, जबकि परिणामवाद के अनुसार कारण का ही कार्य में रूपांतर परिणाम होता है। तत्व एक ही होता है, सिर्फ अवस्था बदलती रहती है। और अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन आरंभवाद और संघातवाद है। दोनों ही कारण में से ही कार्य की उत्पत्ति मानते हैं, पर डिफरेंस इतना ही है कि आरंभवादीओ कार्य जगत ने सत्य माने છે, જ્યારે સંઘાતવાદીઓ કાર્ય જગતને સત્ય નથી માનતા એમ। તો પરિણામવાદ સાથે આની કમ્પેરિઝન કઈ રીતે થશે? પરિણામવાદીઓ અને આરંભવાદમાં ડિફરન્સ એટલો છે કે આરંભવાદના અનુસાર છે ને કાર્ય એક કારણની નવી શરૂઆત થાય છે, એટલે બહુ બધા कारण बहुत सारे कारण इकट्ठे होकर एक नया कार्य की शुरुआत होती है, एक आरंभ होता है। और परिणामवाद के अनुसार परिणामवादना अनुसार है ना कारण का ही एक कार्य में रूपांतर परिणाम થાય છે। તત્વ એક જ છે, ખાલી અવસ્થા બદલાય છે। તો આરંભવાદ પણ આમાં એક્ઝેક્ટ પરફેક્ટ કોન્ટ્રાડિક્શન શું છે કે આરંભવાદીઓ એ કહે છે કે એક જ વસ્તુ કન્ટિન્યુ નથી થતી પણ નવી વસ્તુ પેદા થાય છે। પરિણામવાદ એ કહે છે કે નવી વસ્તુ ઉત્પન્ન નથી થતી, જે કારણ હતું એની જ અવસ્થા બદલીને અને એ કાર્યના રૂપમાં બની જાય છે, બદલાય છે। હા, તો આરંભવાદમાં રીઝનિંગ એ છે કે જેવી રીતે ફોર એક્ઝામ્પલ કપડું હોય એ આપણે દોરીઓમાંથી પતલા પતલા દોરા હોય એને ભેગા કરીને એમાંથી આપણે કપડું બનાવીએ। હવે જે દોરાનો ઉપયોગ આપણે કપડાની જેમ ન કરી શકીએ, પણ એ જ દોરાઓને હોરિઝોન્ટલી અને વર્ટિકલી વણી દેવાને કારણે એ પહેરવા લાયક બની જાય છે। તો જો જેમ પરિણામવાદમાં આપણે એમ કહીએ છીએ કે એ જે દોરો છે એ જ પટના રૂપમાં બન્યું છે, એટલે એનું જ વણાટ જે છે એ જ કપડાના રૂપમાં બની ગયું છે, કપડું કોઈ નવી વસ્તુ નથી। આ પરિણામવાદ કે છે। આરંભવાદીઓ એ કહે છે કે જો એ વસ્તુ એક જ કન્ટિન્યુ થતી હોય તો દોરાને પણ પહેરી શકાય અને કપડાને પણ પહેરી શકાય, એટલે વસ્તુઓના કાર્યમાં જે ડિફરન્સ થઈ જાય છે એવું ડિફરન્સ ન થવું જોઈએ જો બંનેની વચ્ચે કોઈ જાતનું રિલેશન હોય। આ આરંભવાદીઓની આર્ગ્યુમેન્ટ છે। સમજાયું? પ્રણામ રાજા। હા રાજા, અહીંયા હજી ક્લિયર નથી થતું, એટલે જે ચિત્રને એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે ને તો એમાં પણ સંઘાત આરંભવાદની જેમ બધા જેવી રીતે અહીંયા ચોખા, દૂધ, ખાંડ એ બધા ભેગા થઈને ખીર બને છે, તો અહીંયા પણ એવી જ રીતે કાગળ, પેન્સિલ, પાણી એ બધું ભેગું થઈને કોઈ ચિત્ર બને છે। તો અહીંયા જે બતાવ્યું ને કે ચિત્રની પૂર્વાવસ્થા ને ઉત્તરાવસ્થા, તો એમાં પણ કોઈ પેન્સિલ તો ચિત્ર નથી બનતું કે પછી કાગળ છે પોતે ચિત્ર નથી બનતું। આ જ્યારે બધું ભેગું થઈ રહ્યું છે ત્યારે ચિત્ર બની રહ્યું છે, તો બંને કોઈક રીતે સેમ જ લાગી રહ્યું છે। એટલે આપે જે એક્ઝામ્પલ આપ્યા ને અહીંયા જે બીજા બધા એક્ઝામ્પલ આપ્યા છે એ બધા સમજમાં આવે છે, પર્ટિક્યુલર આ એક ખાલી પેઇન્ટિંગનું જ એક્ઝામ્પલ થોડું કન્ફ્યુઝિંગ લાગી રહ્યું છે। પણ પેઇન્ટિંગના એક્ઝામ્પલમાં પણ આપણે એ કહીએ છીએ કે જે વસ્તુનો ઉપયોગ આપણે પેઇન્ટિંગને બનાવવા માટે કર્યું છે એ વસ્તુના પરિણામ સ્વરૂપે જ એ ચિત્ર બન્યું છે। એ ચિત્ર જે બન્યું છે એ કોઈ ન્યૂ બિગિનિંગ નથી, કોઈ નવી શરૂઆત નથી, જેમ આરંભવાદીઓ માને છે।
આરંભવાદીઓ જો પરિણામવાદના આ એક્ઝામ્પલને યુઝ કરે તો એ લોકો એમ કહે છે કે આ એક જ વસ્તુનું પરિણામ નથી, કેમ કે જ્યાં સુધી તમે કેનવસ પર ચિત્ર દોર્યું નહીં હતું ત્યાં સુધી તો ચિત્ર જેવી કોઈ વસ્તુ એક્ઝિસ્ટ નથી કરતી, હવે એક્ઝિસ્ટન્સમાં આવી છે. સમજાયું? હા રાજા, એટલે હજી પણ મને આમાં આરંભવાદ અને પરિણામવાદ એ બંનેનું એ એક્ઝામ્પલ તો સેમ જ હજી લાગી રહ્યું છે કે જ્યારે બધું ભેગું થઈ રહ્યું છે ત્યારે જ કોઈક નૂતન કાર્ય ઊભું થઈ રહ્યું છે ને. એટલે જો આ પેન્સિલ કાગળ ને એ બધું ભેગું જ ના થયું હોત તો ચિત્ર તો ટોટલી ડિફરન્ટ જ વસ્તુ પેદા થઈ ને, કારણ કે આપણે પેન્સિલ તો ચિત્ર નહીં થઈ શકે. આરંભવાદ અને પરિણામવાદ આ બંનેમાં ડિફરન્સ કેવલ એટલું છે કે કારણ જ કાર્યના રૂપમાં કન્ટિન્યુ થાય છે કે કારણ પછી કાર્ય જે થયું છે એ કોઈ નવી ઉત્પત્તિ છે. જો કન્ટિન્યુએશન માનતા હો તો પરિણામવાદ છે અને કન્ટિન્યુએશન ન માનતા હો તો આરંભવાદ છે. હું એ જ કહી રહી છું કે મને નૂતન લાગી રહ્યું છે, કારણ કે ચિત્ર તો આખું કંઈક નવું જ બન્યું ને. એ તો જે પેઇન્ટ બ્રશ તો ચિત્ર નથી બન્યું કે પાણી ચિત્ર નથી બન્યું, જે ટોટલી બન્યું એ તો કંઈક નવું જ બન્યું. તો મને એ નૂતન લાગી રહ્યું છે. પણ નવી વસ્તુ બની પણ વિધાઉટ એ પેન પેન્સિલ કે કલર્સના યુઝ વગર તો ન બની ને. જો એ પેન પેન્સિલ કલર્સ કેનવસ. હા રાજા, એટલે આરંભવાદમાં પણ એ તો કહી જ રહ્યા છે ને કે આ જયારે બધું ભેગું થયું ત્યારે કંઈક નવું કાર્ય બન્યું, એને આપણે ખીર કહ્યું. તો નૂતન વસ્તુનો આરંભ જ ત્યાં કહી રહ્યા છે ને. એ લોકો એ કહી રહ્યા છે કે પહેલાના યુઝ કરેલા ચોખા અને દૂધ એ ખીર સાથે રિલેટેડ નથી. પરિણામવાદ એ કહે છે કે દૂધ અને ચોખાની જ અવસ્થા બદલીને ખીર થઈ ગઈ છે. રાજા, એટલે આ જે નૂતન કાર્ય બન્યું એને જે પ્રીવિયસ વસ્તુ હતી એની સાથે કોઈ રિલેશન નથી, એવી રીતે ત્યાં સમજાવે છે આરંભવાદ. હા, એ આરંભવાદ છે. અને પરિણામવાદ એ કહે છે કે રિલેશન છે. જે વસ્તુ દૂધ ચોખાનો ઉપયોગ આપણે પહેલા કાચા કાઢ્યા હતા એને જ જયારે ઉકાળ્યું તો એ સીજી ગયા અને એ સીજેલું જે છે એને જ આપણે ખીર કહીએ છીએ. તો ક્યાં કોઈ નવી વસ્તુ આવી? એ રીતે પરિણામવાદ બોલશે. આરંભવાદીઓ એ કહે છે કે કોઈ રીતે રિલેટેડ નથી, કોઈ નવી વસ્તુ પેદા થઈ છે એમ. હા રાજા, હવે એકદમ ક્લિયર છે. સંજય हेलो राजा. हाँ जूही. राजा, मतलब अपन इसमें ऐसा समझ सकते हैं क्या कि जैसे आरंभवाद और परिणामवाद है तो इसमें मतलब जो अपन ने संघातवाद भी देखा, इन सब में मतलब सबका सिर्फ देखने का तरीका अलग है पर चीजें तो सब इकट्ठा हो ही रही है. यहाँ पे खीर नहीं बनाई तो उसमें चोखा दूध खांड हुआ, वहाँ पे चित्र बनाया तो कैनवास कलर पेपर वो सब हुआ. संघातवाद था तो उसमें अपन ने सब वृक्षों को इकट्ठा करके वन बनाया. तो खाली सबका मतलब देखने का तरीका ही अलग है. जैसे आरंभवाद में वो कह रहे हैं कि दैट इज अ न्यू स्टार्ट और परिणामवाद बोल रहे हैं कि वो कंटिन्यूएशन है, सिर्फ अवस्था बदली है. तो खाली वो देखने का मत ही अलग है ना, बाकी सब तो इकट्ठा तो सब कुछ ही हो रहा है ना. कोई भी एग्जाम्पल कोई में सेट हो सकता है ना. हाँ, एग्जाम्पल तो हर एक में सेट कर सकते हैं. जैसे मैंने कहा कि आरंभवादियों ये कहेंगे कि कारण और कार्य इन दोनों में एक स्टेप आगे मतलब रिलेशन है. आरंभवादी ये कहेगा कि नहीं कोई रिलेशन नहीं है, कारण अलग चीज है कार्य अलग चीज है, कोई नई वस्तु पैदा हुई है. परिणामवादी होगा वो ये कहेगा कि नहीं कारण ही कार्य बन गया है, अवस्था भेद है वस्तु भेद नहीं है. हाँ राजा, ये समझ में ये तो आया समझ में.
राजा मेरा एक प्रश्न था। हाँ राजा, विवर्तवाद के बारे में महाप्रभु जी का उत्तर पक्ष ऐसा था कि ब्रह्म का जो सामर्थ्य है विरुद्ध धर्माश्रय का, वो आपने समझा कि वो उत्तर पक्ष लेके विवर्तवाद का खंडन किया है महाप्रभु जी ने, टू द एक्सटेंट अभी तक जितना समझाया। तो वैसे बुद्ध का शून्यवाद के लिए क्या उत्तर पक्ष है महाप्रभु जी का? महाप्रभु जी बौद्धों के साथ वैसे ज्यादा आर्ग्यू नहीं करते, पर महाप्रभु जी ये कहते हैं कि जो वस्तु नहीं है, ऐसी असत्ता में से कोई सत्ता पैदा नहीं हो सकती है। वो लोग कह ही रहे हैं ना कि कुछ पैदा हो ही नहीं रहा है, वो सब क्षणिक है। वो लोग कह ही रहे हैं, वो लोग कहाँ कह रहे हैं कि कुछ पैदा हो रहा है? जितना तुम्हारी प्रतीति में है, जितना तुम्हारी प्रतीति में है उसे तो तुम्हें डिफाइन करना पड़ेगा। अब जैसे शंकराचार्य जी ने इल्यूजन कहा, तो इल्यूशन के भी आधार रूप जो माया है उसे तो तुमने सत्य कहा, या माया के सामने जो ब्रह्म है, बिंब है, उसे सत्य कहा, तो हम इल्यूजन मान सकते हैं। लेकिन बुद्ध के पास ना तो कोई बिंब है, वो भी मिथ्या, ना प्रतिबिंब है, वो भी मिथ्या, इल्यूजन है, वो भी मिथ्या। ये स्टैंड नहीं एक्सेप्ट किया जा सकता। नहीं, क्षण है ना राजा, क्षण बोल रहे हैं ना कि क्षण में वो क्षण में सत्य है ऐसा भी नहीं बोल रहे, वो क्षण में भी मिथ्या ऐसा बोल रहे हैं। देखो बात यह है कि मिथ्या जो कुछ भी हो, लेकिन मिथ्या वस्तु का कोई आधार तो तुम्हें देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? जिसके ऊपर तुम्हें इल्यूजन हो रहा है, एक वस्तु को सत्य मान के उसके 1000 इल्यूजन्स बता सकते हैं, लेकिन इल्यूजनरी वस्तु का इल्यूजन नहीं बता सकते ना। तो इसीलिए उन्होंने शून्य कहा ना राजा, कि कुछ है ही नहीं। तो मैं वही सोच रहा था मैं पूरा दिन की वो उत्तर पर उसका कुछ हो ही नहीं सकता है। जब वो कोई बोल रहा है कुछ है ही नहीं, तो वो आर्ग्यूमेंट कन्विंसिंग लगती है ना। जैसे विवर्तवाद में राजा, जैसे जितना हमने आज तक पढ़ा उसमें विवर्तवाद में हमारा उत्तर पक्ष कन्विंसिंग लगता है, पर बुद्ध के बारे में कुछ कन्विंसिंग उत्तर पक्ष नहीं आ रहा है, ऐसा मेरा पूछना था। उत्तर पक्ष में महाप्रभु जी को पहली बात तो ये है ना, देखो कि वेद को नहीं मानते हो, उनके साथ आर्ग्यूमेंट करने का कोई सेंस ही नहीं बनता है, क्योंकि प्रत्यक्ष और प्रमाण के आधार पर कोई एक पर्सन बात कर रहा है और हम शब्द प्रमाण के आधार पर बात कर रहे हैं, तो हमारे जो एजेंडा है वही मैच नहीं करते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर उनके साथ आर्ग्यू किया भी जाए तो वो लॉजिकली तुम आर्ग्यूमेंट दे सकते हो, प्रामाणिक आर्ग्यूमेंट तो दे नहीं सकते हो। राइट। शंकराचार्य एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, एक सेकंड बस। हाँ। शंकराचार्य जी ऐसे किसी के साथ हम आर्ग्यू करेंगे तो वेद का प्रमाण दे सकते हैं। बुद्ध के साथ आर्ग्यू करने में हम क्या बात करेंगे? तो तर्क जितने चलेंगे उतना तर्क होगा, बाकी बात खत्म हो जाएगी, क्योंकि स्टैंड ही डिफरेंट है। ऐसा जी राजा, एक आर्ग्यूमेंट मैंने ऐसा लॉजिकली सोचा था, तो शायद आपका उस पर व्यूज क्या है। मैं सोचा था कि वो 0 बता रहे हैं और हम इन्फिनिटी बता रहे हैं, तो इन्फिनिटी से 0 तक पहुंच सकते हैं हम, मतलब इन्फिनिटी को डिवाइड करते जाओ तो 0 तक पहुंच सकते हैं, मतलब वो सबसेट हो गया। पर 0 से कभी भी इन्फिनिटी तक पहुंच नहीं सकते, तो वहां से कभी भी इन्फिनिटी तक, तो मतलब ये इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट मेरे को सुपीरियर लग रहा है, क्योंकि वो 0 इंक्लूसिव है उसमें। ऐसा एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट मैं सोच रहा था। हाँ, वो तो सही बात है। हम 0 और इन्फिनिटी को कंपेयर करें तो हाँ राजा, 0 और इन्फिनिटी को कंपेयर करें तो इन्फिनिटी सुपीरियर लग रहा था। वो तो सवाल ही नहीं है। इन्फिनिटी ही हमेशा पॉजिटिव थॉट है, नेगेटिविटी है 0 को मानना, शून्य मानना। जी राजा, बट ये सिर्फ लॉजिक के तौर पर ही है, शास्त्र वेद के अनुसार तो है ही नहीं। आपकी बात सही है राजा। ठीक है, जो ही करो। जी राजा, मेरा यहाँ टॉपिक था निवेश्वर सांख्य और शेश्वर सांख्य। तो अभी हमने ये सब परिणामवाद और सब डिस्कस किया, उनमें से ही होगा। तो पहले तो सांख्य का बेसिक प्रिंसिपल हम समझेंगे। तो सांख्य का बेसिक प्रिंसिपल, सांख्य क्या है? तो सांख्य प्रकृति और पुरुष,
ऐसे दो तत्व हैं, प्रकृति में से जड़ बने और पुरुष में से जीव। मतलब सांख्य ऐसा माना जाता है कि जड़ और जीव से ही ये पूरा जगत, ये पूरी सृष्टि बनी है। फिर हमने ये दो टाइप के सांख्य देखे, निरेश्वर सांख्य और शेश्वर सांख्य। अब निरेश्वर सांख्य ऐसा है कि वो सिर्फ दो ही तत्व को मानते हैं, प्रकृति और पुरुष, और वही इस जगत के कारण है, वो ऐसा मानते हैं। वो प्रभु को इस जगत के कारण नहीं मानते हैं। और जैसे हमने देखा कि कारण और कार्य, अभी हमने परिणामवाद में देखा कि कारण मतलब जो है वही कार्य में मतलब परिणत होता है, उसकी अवस्था ही सिर्फ बदल रही है। पर यहाँ निरेश्वर सांख्य ऐसा मानते हैं कि कार्य और कार्य में कोई रिलेशन ही नहीं है, ऐसा निरेश्वर सांख्य मानते हैं। और शेश्वर सांख्य क्या है, तो शेश्वर सांख्य जो है वो यही कपिलवन का ही मत है। तो वो ऐसा है कि वो ईश्वर को ही कारण रूपता मानते हैं। इन एडिशन मतलब जो अपन ने ये समझा कि वो तत्व और पुरुष तो है, पर ईश्वर प्रभु को ही वो कारण रूपता मानते हैं, क्योंकि जड़ जीव जो है वो प्रभु में से ही बने हैं। तो यही जो है वो परिणामवाद है, जो हमने कल भी देखा था कि प्रभु ही है, ब्रह्म ही है, वही उसमें जड़ जीव और जगत में बना है। तो मेन कारण ही प्रभु मतलब कारण ही कारण रूपता बने, तो ब्रह्म में से ये जगत उत्पन्न हुआ है। तो अगर हम ऐसा सोचें कि ब्रह्म में से ये जगत उत्पन्न हुआ है और कार्य ही कारणता बना है, तो फिर अपन कार्य को मिथ्या कैसे बोल सकते हैं? तो कार्य कोई मिथ्या नहीं है, ये हम समझ सकते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था परिणाम, ये परिणामवाद है, तो हमने परिणामवाद में एग्जाम्पल देखा कि जैसे बालक की अवस्थाएं बदलती है, वो पहले छोटा था, फिर किशोर अवस्था, फिर मनुष्य अवस्था, तो उसकी अवस्थाएं बदल रही है। तो यहाँ ये मत, महाप्रभु जी भी इस मत को फॉलो कर रहे हैं, शेश्वर सांख्य को। वो यहाँ यही बताना चाह रहे हैं कि जगत जो है वो मिथ्या नहीं है, वो सत्य ही है। वो मिथ्या कैसे हो सकता है? क्योंकि मिथ्या नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रभु ही जगत रूप में बना है, प्रभु मिथ्या नहीं है, तो जगत को हम मिथ्या नहीं बोल सकते। इसलिए जो कार्य है वो भी सत्य है, और जगत इस प्रकार वो प्रकृति में से प्रकृति हुए मतलब उसी का ही परिणाम है। और ऐसी यहाँ पे वो कपिलवंत सांख्य की मान्यता है। और ये महाप्रभु जी भी यही सांख्य को मानते हैं कि हमें शेश्वर सांख्य को मतलब मानना चाहिए। और महाप्रभु जी ने ऐसा भी कहा है कि जो निरेश्वर सांख्य को फॉलो करेगा उसे नरक मिलेगा, और शेश्वर सांख्य वाले जो जीव हैं, जो भी जड़ जीव पदार्थ है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। राजा, इसमें मैं इतना ही समझ पाई हूँ, सही है? हाँ, बात तो सही है। निरीश्वर सांख्य जो है वो स्वतः इंडिपेंडेंटली प्रकृति और पुरुष से उत्पत्ति बताते हैं, और शेश्वर सांख्य के अंतर्गत ईश्वर में से प्रकृति पुरुष आदि तत्वों की उत्पत्ति और फिर उनमें से सभी पदार्थों की उत्पत्ति, ऐसा हम मानते हैं। सिर्फ इतना एडिशन कि विकृत परिणामवाद जो है वो सांख्य का मत है, और महाप्रभु जी ने अविकृत परिणामवाद एक्सेप्ट किया है। मतलब उन्होंने प्रकृति में विकार आता है और तब उसमें से सब तत्वों की उत्पत्ति मानी है। महाप्रभु जी ये कहते हैं कि भगवान में से ही प्रकृति पुरुष उत्पन्न होते हैं, और प्रकृति में विकार आए बिना उसमें से सब वस्तु उत्पन्न हो जाती है भगवान के सर्वभवन सामर्थ्य के कारण। जी राजा, समझ में आया। राजा, परिणामवाद में एक प्रश्न था। हाँ, जैसे महाप्रभु जी ने जगत को अविकृत परिणामवाद माना है कि ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति हुई, वो अविकृत परिणाम है, तो फिर मेरे को ऐसा प्रश्न हो रहा था कि ये यूनिवर्सल सेट मान के हम चले कि ब्रह्म से जगत की उत्पन्न हुई वो अविकृत परिणाम है, तो विद इन दिस यूनिवर्सल सेट दूध से दही की उत्पत्ति हुई, वो सबसेट हो गया, तो वो विकृत परिणाम हो गया। तो मेरा ऐसा प्रश्न हो रहा था कि यूनिवर्सल सेट की कैरेक्टरिस्टिक सबसेट को ऑटोमेटिक लागू पड़नी चाहिए, तो यहाँ दोनों की कैरेक्टरिस्टिक भिन्न हो रही है। मतलब जो जगत है वो अविकृत परिणाम है, पर जगत का जो एक पार्ट है दूध में से दही या ऐसा कुछ, वो विकृत परिणाम है।
तो वो कैसे समझे, विरुद्ध धर्माश्रय से समझे कि? देखो, विरुद्ध धर्माश्रय तो एक सोल्यूशन है। बाकी दूसरी बात ये है कि महाप्रभु जी ने क्योंकि आविर्भाव, तिरोभाव और जगत के सभी एक एक पदार्थों को ब्रह्मात्मक माना है, इसलिए बेसिकली महाप्रभु जी ने किसी भी वस्तु को उसके दिखाई देते फॉर्म में कन्फाइंड नहीं माना है। मतलब जब हम ये कहते हैं कि ये दूध है, तो दूध कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि उसमें प्रभु की इच्छा से सिर्फ उतने कैरेक्टर का आविर्भाव हुआ है, बाकी सब कैरेक्टर्स तिरोहित हैं, लेकिन नाश नहीं है उन कैरेक्टर्स का। इसलिए महाप्रभु जी ये कहते हैं कि सर्वम सर्वमयम, जो कुछ भी है वो सब कुछ है। उसमें सिर्फ उस शक्ति के प्रकट और अप्रकट होने जितना मैटर है वो है, शक्ति उसमें है नहीं, आउटराइट ऐसा कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ ब्रह्मात्मक है। लीला के लिए, वैरायटी के लिए भगवान प्रत्येक पदार्थ में से उनकी सामर्थ्य में और उनके कैरेक्टर्स में शक्ति संकोच करते हैं, और वो शक्ति संकोच के कारण हमें वो वस्तु सिर्फ दूध दिखाई देती है, बाकी सब जगत के पदार्थों से अलग। लेकिन वो सिर्फ दूध है ऐसा नहीं है, वो ब्रह्म का सदंश होने के कारण, उसमें सदंश रूपता के कारण सब कुछ बनने की शक्ति रही हुई है। इसलिए दूध सिर्फ दूध है और वो दही नहीं है, ऐसा आउटराइट आविर्भाव तिरोभाव वाले सेक्शन में नहीं बोला जा सकता है। ये एक बात है। बाकी इसकी डिटेल थोड़ा आविर्भाव तिरोभाव और सत्कारण सत्कार्यवाद का सब्जेक्ट चलने दो, तब तक समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को पेंडिंग रखो, तब सॉल्व हो जाएगा ठीक से। जी राजा, ठीक है। हेलो। हाँ, एक प्रश्न ऐसा था कि प्रकृति और पुरुष में विकार नहीं आता, तो विकार का अर्थ क्या होगा? और दूसरा प्रश्न ऐसा था कि अगर महाप्रभु जी अविकृत परिणामवाद प्रपोज कर रहे हैं, तो उनका बेस अगर कपिल मुनि का सांख्य है, जो सहीश्वर सांकर है, जो विकृत परिणामवाद मानते हैं, तो अविकृत परिणामवाद जो है वो कहाँ से मानते? अच्छा, सॉरी, ईश्वर सांख्य में अविकृत परिणामवाद ही है, निरीश्वर सांख्य वालों ने विकृत परिणाम कहा है। अच्छा, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन था, वो क्लियर हो गया। और आप विकार जरा समझाएंगे, विकार का अर्थ क्या है? विकार का मतलब ये कि प्रकृति का फॉर्म जो है वो सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों गुणों की मिश्र अवस्था है। जो अपने निरीश्वर सांख्य वाले हैं वो ये कहते हैं कि उस प्रकृति के स्वरूप में चेष्टा होती है, चेष्टा होने के कारण उसके मूल स्वरूप में विकार आ जाता है, क्योंकि तीनों गुण जो हैं वो तब तक सटल कंडीशन में, इक्वल पोजीशन में, उसमें प्रपोर्शन के डिफरेंस का विकार आता है, और उसमें से फिर पंचमहाभूत, तन्मात्रा और ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार वगैरह की उत्पत्ति होती है। इसे उन्होंने विकार कहा है। महाप्रभु जी ये कहते हैं कि उत्पत्ति काल में कोई भी विकार नहीं आता है, मतलब उसके तीन डिफरेंस हो जाते हैं प्रकृति के। प्रकृति में से महत्त्व मतलब बुद्धि पैदा होती है, बुद्धि में से अहंकार पैदा होता है, उस अहंकार के सात्विक अहंकार, राजस अहंकार और तामस अहंकार, ये तीन भेद हो जाते हैं। फिर उनमें से तन्मात्रा, फिर पंचमहाभूत और फिर उनमें से सब जड़ पदार्थ, ये उत्पत्ति की प्रोसेस है। प्रमेरत्न संग्रह की पुस्तक में मूल रूप विवेक नाम का चैप्टर है, उसके अंतिम पेज पर एक उत्पत्ति का पूरा चार्ट दिया हुआ है, वहां ये बात ज्यादा समझ में आएगी। इसलिए अभी हम उसे पेंडिंग रख सकते हैं कि हमने प्रकृति में से उत्पत्ति कैसे बताई है। उन लोगों ने जो विकृत परिणाम बताया उसका मीनिंग मैंने समझा दिया। ठीक है, ठीक है। तो इसलिए उन लोग प्रकृति में चेष्टा का कोई कारण नहीं बताते कि जो है वो हो जाता है, चेष्टा होने के कारण ये सब प्रकट होता है, उसमें प्रभु का कोई रोल नहीं है, ऐसा उनका कहना है, राइट? हाँ, ईश्वर नाम का कोई तत्व है ही नहीं, प्रकृति और पुरुष ये दोनों स्वतंत्र तत्व हैं। तो फिर वो विकार का कोई कारण नहीं बताते, विकार होने का? विकार यही कि प्रकृति जब पुरुष के सामने आती है तब पुरुष मोहित हो जाता है, और फिर उन दोनों के संपर्क में आने से जगत पैदा हो जाता है, प्रकृति में विकार आ जाता है। मतलब पुरुष जो है वो स्पेक्टेटर है, प्रकृति उसकी भोग्य है, पुरुष उसका भोक्ता है। इसलिए भोग्य प्रकृति अपने आप में से उन भोग्य पदार्थों को पैदा करती है, जिसका भोग पुरुष की व्यष्टि जीवात्माएं करती है।
ठीक है समझ गया जी। राजा। हाँ राजा ऐसा मान सकते हैं क्या कि जैसे हमने अभी मतलब विकृत परिणाम क्या है कि दूध का दही बन गया, मतलब उसका जो मूल स्वरूप है वो चेंज हो जाता है, दूध का दही। तो अभी हमने देखा कि निरेश्वर सांख्य जो है वो विकृत परिणामवाद है। तो मतलब ये दूध का दही बन गया, वो हम मान सकते हैं क्या कि वो कार्य और कारण में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि निरेश्वर सांख्य में तो वही है ना। नहीं, कार्य कारण में रिलेशन तो हुआ ना, जो दूध है वही दही बन गया, दूध अलग से थोड़ी बचा। हाँ तो इधर तो रिलेशन आ रहा है, पर वैसे वो जो मैंने पीडीएफ में देखा था तो रिलेशन माना है ना, परिणामवादियों ने रिलेशन माना है, आरंभवादियों ने रिलेशन नहीं माना है। अच्छा, तो यहाँ निरेश्वर सांख्य ने भी ऐसे कार्य और कार्य के बीच में रिलेशन माना है या नहीं? माना है ना, उन्होंने तो जगत को भी सत्य माना है। हाँ, मूल परिणामवाद सांख्य का मत है, परिणामवाद में विकृत परिणाम निरीश्वर सांख्य ने माना है और अविकृत परिणाम सेश्वर सांख्य ने माना है, जिस परंपरा में महाप्रभु जी ने भी अविकृत परिणामवाद माना है। जी आ गया। ठीक है, तो आज का यहाँ रखते हैं, नए विषय को हम शुरू नहीं करेंगे। अब शिविर के बाद मतलब अब सोमवार से हम आगे प्रमेय रत्न संग्रह को कंटिन्यू करेंगे।